السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب کا فارسی اسٹڈی چینل پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آئیے 1 year سرٹیفکیٹ کورس ان پرسین لینگویج نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کی جانب سے زیر اہتمام دارالعلوم شیخ احمد کھٹو سرخیز بڑی درگاہ احمد آباد گجرات میں بتاریخ 9/6/2020 کو کتاب فارسی آئیے فارسی سیکھے نامی کتاب لیسن 5 کا پارٹ 2 شروعات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلتے ہیں پیج پہ۔ دیکھیے یہاں پر ہے کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ اضافت کہتے ہیں۔ اضافت دو لفظوں اسم اور صفت وغیرہ کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے زیر لگایا جاتا ہے، جس کا تلفظ بغیر زور دیے ای سے کیا جاتا ہے۔ اس زیر کو کسرہ اضافت کہتے ہیں۔ جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف اور جس اسم کے ساتھ ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ملنے سے بننے والی ترکیب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ ترکیب اسم کے علاوہ صفت سے بھی بن سکتی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دو لفظ ہے نا مضاف الیہ جب بنتے ہیں تو اس میں صرف زیر دے کر کے سمجھ رہے ہیں اسے بنا دیا جاتا ہے نا، باقی کسی چیز کی اور بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہاں پر ہے جیسے کہ مداد سارا ہے نا، مداد سارا تو یہ ہے مضاف الیہ کی ترکیب، اسی لیے یہاں پر زیر لگا دیا گیا ہے مداد کے نیچے۔ دیکھ رہے ہیں مداد کے نیچے زیر ہے نا۔ ایسے ہی تو اس کا معنی ہوا سارا کی پینسل اضافت تملیکی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اضافت تملیکی کہتے ہیں نا، ساراز پینسل ہے نا، پوزیشن اس طریقے سے۔ ایسے ہی اسم من، فارسی ہے اسم من، اس کا مطلب ہے میرا نام، یہ بھی اضافت تملیکی ہے، کسی ذات کی طرف جو ہے اضافت کی گئی، اس لیے اضافت تملیکی کہا جائے گا۔ ایسے ہی دیکھیے کہ اتاق کوچک ہے نا، چھوٹا کمرہ ہے نا، چھوٹا کمرہ، اتاق کوچک چھوٹا کمرہ ہے نا۔ تو مرکب توصیفی، چونکہ ایک ہے کہ چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، دبلا ہونا، یہ سب صفت ہے، تو اس لیے جو یہاں پر کہا گیا تو یہ کیا کہا گیا؟ یہ مرکب توصیفی ہے نا، اسمال روم۔ ایسے ہی ہے انور نامدار ہے نا، انور نامدار، دیکھیے یہ اضافت ابنی ہے، اضافت ابنی سے بولتے ہیں۔ ایسے دیکھیے زبان فارسی زبان، زبان فارسی ہے نا، فارسی زبان فارسی زبان، اضافت توضیحی یعنی توضیحی وضاحت کو بولتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کس زبان کے جانکار ہیں تو کہا کہ فارسی زبان کا زبان فارسی زبان کا جانکار ہوں ہے نا۔ تو اب یہ اضافت یعنی وضاحت چاہ رہا تھا کہ آپ کس زبان سے مطلب یہ کہ زیادہ یہ آپ کو شوق ہے، تعلق ہے، وہ بتلا رہے ہیں یہاں پر۔ ایسے ہی دیکھیے یہ ہے شہر تہران ہے نا، شہر تہران مطلب یہ کہ جو ہے کہ تہران کا شہر، ایک شہر ہے، جگہ ہے، اس کا نام ہے۔ یہ بھی اضافت توضیحی ہے، یہ بھی وضاحت چاہ رہے ہیں یہاں پر ہے نا، اس وجہ سے اسے بھی اضافت توضیحی کہیں گے۔ چلتے ہیں اگلے پیج پر، پیج نمبر 66 پہ دیکھتے ہیں اس پر کیا ہے۔ آئیے ایکسرسائز ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیے ایکسرسائز 2 مشق 2 کالموں میں
देखिए मैं हाईलाइटर करता हूँ, पढ़िए कॉलमों में दिए गए अल्फाज से मुरक्कब इजाफी बनाइए। सिर्फ बनाना है, माना नहीं लिखना है ना। ज़बान अताक है ना, इस तरीके से बना देना है। गोया कि यहाँ माना करेंगे तो माना अदा नहीं होगा, लेकिन इस वाले लफ्ज में माना नहीं अदा होगा। बाकी पहले बाद के जितने भी हैं उन सब पांचों में क्या होंगे, माना अदा होंगे, लेकिन इसमें नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ बना है कि कॉलमों में दिए गए, ये जो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, इससे इससे क्या है, आपको मुरक्कब इजाफी बनाना है सिर्फ। तो ज़बान अताक ये बना दिया मैंने, ये देखिए यहाँ पे है ना। ऐसे ही देखिए यहाँ अहले पंच है ना बना हुआ है, पांच अहल है ना। इस तरीके से देखिए क्लास से उस्ताद, उस्ताद का क्लास, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया आसानी के लिए, क्लास से उस्ताद, इस तरीके से बनाना है। ऐसे ही तमरीन दर्स है ना, तमरीन दर्स यानी दर्स की तमरीन, दर्स की का मश्क, इस तरीके से। ऐसे ही देखिए ये दर ईरान, ईरान का दरवाज़ा है ना, दर ईरान यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ऐसे ही है कैफे फारसी है ना, फारसी का बस्ता, फारसी का थैला, यहाँ पर मैंने लिख दिया कैफे फारसी। तो गोया के यहाँ पर इन दोनों से, इससे इससे ये क्या करना था आपको, इन सब से आपको यहाँ पर बनाना था मुरक्कब इजाफी, जो ये देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया है। आगे बढ़ाते हैं, पेज को देखते हैं क्या है। देखिए इसमें लिखा है कि मुसव्वते के बाद इजाफत है ना, मुसव्वते के बाद इजाफत, मुसव्वते तो आपने पढ़ा ही, हुर्फ है ना इल्लत है ना, उसके बाद जो है इजाफत, हुर्फ इल्लत के बाद वाव अलिफ या वगैरह जो आपने पढ़ा है ना। देखिए यहाँ पर सबर की मिसाल, ज़ेर की मिसाल दे रहे हैं, आकाई दुख्तर, आकाई आका था, अब आकाई दुख्तर। तो ज़बर ज़ेर पेश भी इसे भी शामिल किया था, लेकिन मुसव्वते की वो मुख्तसर सूरत थी है ना, तवील सूरत नहीं थी है ना। देखिए आकाई दुख्तर, डॉक्टर साहब है ना। देखिए ऐसे दानिशजू से दानिशजुए ज़बान है ना। यहाँ पर क्या है, ये भी देखिए दानिशजुए ज़बान, ज़बान का तालिबे इल्म है ना। ऐसे ही बच्चा, बच्चे मन है ना, बच्चे मन मेरा बच्चा, इस तरीके से। ऐसे संदली, संदली देखिए संदलीय शुमा, संदलीय शुमा, दोनों तरीके से या की इजाफत करके उठता है। आपकी कुर्सी है ना। देखिए यहाँ पर नीचे दिया है कि अक्सर लोग या को छोटी शक्ल में हमजा लिखते हैं, जैसे बच्चे मन, बच्चे मन, ये देखिए दूसरे वाले में यहाँ पर है ना, कह रहे हैं लेकिन याद करने के लिए इस किताब में या को उसकी पूरी शक्ल में लिखा गया है। तो घबराने की बात नहीं है, जहाँ पर पूरी शक्ल लिखी हुई है उसको पूरी शक्ल में ही हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं 67 पेज पे, यानी 67 पेज पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए आगे यहाँ पर आपके सामने पेज खुला, पेज पे लिखा है अलिफ पर ख़त्म होने वाले नामों के साथ जब ख़ानदानी नाम भी लिखा जाता है तो नाम और ख़ानदानी नाम के दरमियान है ना, कह रहे हैं या का इजाफा नहीं किया जाता, यानी नाम के दरमियान, यानी नाम और ख़ानदानी नाम दोनों के दरमियान या का इजाफा नहीं किया जाता। तब जबकि कह रहे हैं कि अलिफ पर ख़त्म होने वाले नामों के साथ, जैसे सारा, अब ये सारा नामदार इसको नहीं बोलेंगे बल्कि सारा नामदार। देखिए यहाँ पर है मश्क, दिए गए अल्फाज से मुरक्कब इजाफी बनाइए। जो नीचे अल्फाज ये सब देखिए दिए गए हैं, ये अल्फाज दिए गए हैं आपको प्लस प्लस करके, यानी देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है, जोड़ देना है, इससे मुरक्कब इजाफी बना देना है। जैसा कि पीछे आपने पढ़ा कि या का इस्तेमाल आपको करना है मुरक्कब इजाफी बनाने के लिए, हमजा का इस्तेमाल, इस हमजे का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। तो इसलिए मैंने या का इजाफा करके देखिए आपके सामने ये सारे जुमले तैयार कर दिए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि बात जल्दी से समझ में आ जाए। देखिए पिंजरा क्लास है ना, तो मैंने यहाँ पे पिंजरा में देखिए बढ़ा दिया या, हालांकि यहाँ पर हमजा ऐसे दे देते तो हो जाता है, लेकिन पिंजरा क्लास क्योंकि उसमें नोट में बता दिया था, आपको तंबीह कर दी थी कि इसमें इसी तरीके से लिखा गया है। कशंगई बच्चा है ना,
यहाँ पर क्लास की खिड़की, यानी सिर्फ इजाफत बनाना है, मुरक्कब इजाफी, माना वगैरह नहीं, मैं माना कर देता हूँ। पिंजरे क्लास, क्लास की खिड़की है ना, कशंग गए है ना, बच्चा है ना, बच्चे की खूबसूरती, इस तरीके से। उसके बाद शुमारे पंज, यानी 5वां नंबर, इस तरीके से 5 नंबर है ना। जैसे कोचे के सारा है ना, इस तरीके से देखिए मैंने बना दिया है इसे। दानिशजू ज़बान, तो दानिशजू ज़बान यानी ज़बान का तालिब इल्म। खूब है ना, खूब आका है ना, आका की अच्छाई, जनाब की अच्छाई, मोहतरम की अच्छाई, इस तरीके से कहते हैं। तो ये भी आपके सामने हुआ पूरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी के कुछ हिस्से पेज पे। देखिए यहाँ पर दिया है कि मुसव्वतों के बाद अस्त पढ़ने के दौरान, मुसव्वतों के बाद अस्त पढ़ने के दौरान अस्त का अलिफ हज़फ कर दिया जाता है और लिखने के दौरान उन मुसव्वतों के बाद हज़फ किया जाता है। देखा आपने, मुसव्वतों के बाद अस्त पढ़ने के दौरान अस्त का अलिफ हज़फ कर दिया जाता है। जब मुसव्वते होंगे, मुसव्वते आपने जान लिया, हुरूफ वावेल इल्लत है ना, का अलिफ जो होगा वो हज़फ कर दिया जाएगा और लिखने के दौरान मुसव्वतों के बाद हज़फ किया जा सकता है। यहीं पर देखिए मिसाल, देखिए आप, इमेज मास्त है ना, असली में ये लफ्ज है, असली लफ्ज क्या है, इमेज मास्त, यानी ये मेज, ये टेबल हमारा है। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर बताया आपको कि उसके अलिफ को हज़फ कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सही तरीका बता दिया, इमेज मास्ट, अलिफ हज़फ कर दी, अस्त के अलिफ को हज़फ कर दिया। ये हमारी मेज है, दिस इज आवर टेबल, टेबल ये हमारा टेबल है ना। ऊ दानिश जुस्त, देखिए यहाँ पर ऊ दानिश जुस्त है ना, जोस्त, वो तालिब इल्म है, ही इज अ स्टूडेंट है ना। वो ईरानियस्त, क्या है, वो ईरानी है ना। ऐसे देखिए यहाँ पर वो ईरानी है, ही इज ईरानी, ईरानियन, ईरानियन। की के अस्त, केस्त कौन, वो इज ही और शी है ना। इसके माना बतला दिए आपको कि इसके माने क्या है, के माने, के माने, और किस्त, के की अस्त मिलकर के हो गया किस्त, और किस्त के माने क्या है, कौन, वो इज शी या शी या ही, दोनों का इस्तेमाल होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 68 यानी 68 पे, पेज नंबर पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए पेज नंबर आपके सामने खुला 68, मश्क दिया है। मश्क है कि मतन के मुताबिक, देखिए नीचे दिए गए ब्रैकेट में गाइन और साद लगाइए और गलत जुमलों को दुरुस्त कीजिए। जैसा कि अभी मैंने पढ़ के बताया आपको कि नीचे दिए गए जुमलों में जो है वो गाइन लिखना है। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4, मैं जो सीधे निशान खींच रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि साद गाइन ये लिखा हुआ है। मैंने पहले आपकी आसानी के लिए लिख दिया ताकि मुझे भी समझाने में आसानी रहे, इसलिए कि पेन नहीं है, मैं उसे लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे किताबी पर नोट कर दिया है, तहरीर कर दिया है। देखिए गाइन का मतलब हुआ गलत और साद का मतलब हुआ सही, कि कौन सा जुमला सही है और कौन सा जुमला गलत है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी किताब में, बाद में उसे इस तरीके से लिख लेना है आपकी याददाश्त के लिए। देखिए 1 नंबर में है कि आकाई दुख्तर बहमन अहले ईरान अस्त, है ना, तो गोया कि ये जुमला सही था कि आकाई दुख्तर बहमन अहले ईरान अस्त, कि आकाई दुख्तर जो है ये कहाँ की रहने वाली थी मोहतरमा, दुख्तर बहमन मोहतरमा ये रहने वाली थी ईरान की। तो गोया कि ये सही है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर साद लगा दिया, ये सही जुमला था, पीछे वाले सबक में है। दूसरे नंबर में देखिए गाइन, ये गलत है, क्यों, इसलिए कि जुमला गलत इस वजह से है कि जो लफ्ज जहां पर आना चाहिए वो लफ्ज वहां पर नहीं है ना। ऊ दानिशजू है ना, ज़बान फारसी अस्त है ना, इस तरीके से है ना। ऊ दानिशजुए है ना, ऊ दानिशजुए ज़बान फारसी, तो यहाँ पर देखिए या का इजाफत कर दिया था ज़बान की तरफ,
हालांकि यहाँ पर नहीं होगा, तो इसलिए इसे मैंने गलत किया और यहाँ पर आपके सामने सही जुमला लिख दिया। वो दानिशजू ज़बान फारसी است, वो फारसी जबान की तालिबा है, मोहतरमा है या तालिब इल्म है। तीसरे नंबर पे देखिए मैंने साद लिख दिया, इसका मतलब कि ये जुमला सही है। खानम मारिया दो दुख्तर वयक पे सरदारत के, खानम मारिया का आपने पिछले सबक में पढ़ा, आपको याद होगा, अच्छी तरीका से आपने उसे जान लिया है कि खानम मारिया के दो दुख्तर और एक पिसर। दुख्तर कहते हैं लड़की को, बेटी को, कि उसकी दो लड़की है और एक बेटी है, एक लड़का है। तो आपने ये सही है, गोया कि ये जुमला आपने पीछे पढ़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ साद लिख दिया, ये सही है। ऐसे ही देखिए चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं, चौथे नंबर पे मैंने गायन लिख दिया है। ये गायन देखिए, इसका मतलब हुआ कि ये जुमला गलत है। सारा यक दुख्तर ईरानी नहीं, बल्कि इसे सही करना है आपको। सही क्या है? सारा यक ईरानी दुख्तर अस्त, इस तरीके से यहाँ लिखा है यक दुख्तर ईरानी अस्त, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही देखिए पांचवें नंबर पे मैंने लिखा है साद, इसका मतलब ये लफ्ज, ये जुमला, ये सेंटेंस सही है। खाना खानम मारिया कशंगा के, खाना खानम मारिया, खानम मारिया का घर कशंग अस्त यानी बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, बिल्कुल सही। वो चैप्टर में भी दिया हुआ था कि उसका घर जो है खूबसूरत है। छठे नंबर पे देखिए, छठे नंबर पे आपने देखा कि गैन लिखा हुआ है, गैन लिखा हुआ है। खाने उ दो अताक कोचक दारद, खाने उ दो कोचाक उताक अताक दारद, है ना। तो खाने उ, है ना, खाने उ दो कोचक, है ना, दो कोचक। तो देखिए यहाँ पर दो के बाद अताक डाल दिया था, कोचक नहीं डाला, हालांकि वो क्या है, दो कोचक, है ना, अताक दारद, है ना। ये आपके सामने रहा कि खाना उ उसका घर दो उताक यानी दो कमरा, छोटा कमरा, उताके कोचक छोटा कमरा, है ना, तारद रखती है यानी उसके पास है। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए आज के सबक में आगे भी आपके सामने है, आगे खुल गया पेज, देखिए आपके सामने है मश्क नंबर 1, मतन के मुताबिक मुकम्मल जुमलों में जवाब दीजिए। देखिए किस तरीके से आया, यहाँ पर आ गया है कि मतन के मुताबिक मुकम्मल जुमलों में जवाब दीजिए। देखिए मतन के मुताबिक देना है आपको, सवाल कर रहे हैं यहाँ पे, मतन में आपने पीछे जो पढ़ा है उसके मुताबिक आपको जवाब लिखना है। यहाँ नहीं देखना है आपको, पहले पहले आपको सवालों को देखना, इसलिए कि इसे मैंने लिख दिया है आपके आसानी के लिए, ताकि आपको समझाया जा सके। देखिए खानम मारिया अहले कुजास्त के, खानम मारिया कहाँ से ताल्लुक रखती है, कहाँ रहती है, कह रहे हैं अहले कश्मीर अस्त। मैंने इधर देखिए इसका जवाब दे दिया है, अहले कश्मीर अस्त, है ना, अहले कश्मीर अस्त, वो कश्मीर की रहने वाली है। नंबर 2 में देखिए दुख्तर नामदार उस्ताद चीज, नामदार दुख्तर नामदार के टीचर या मुअल्लिमा या मुअल्लिम का नाम क्या है, ये हाँ ना उस्ताद नाम चीज, हाँ उस्ताद चीज, उस्ताद कहाँ से हैं यानी कहाँ के रहने वाले, कौन है, अहले तोरान अस्त, वो तोहरान के रहने वाले हैं। ऐसे ही देखिए आहा चंद बच्चा दारंद, उसके कितने बच्चे हैं, तीसरे नंबर में देखिए कह रहे हैं कि आहा सह बच्चा दारन के, उसके 3 बच्चे हैं, सही बात है, खानम मारिया के 3 बच्चे थे। उसके बाद देखिए इसमें बच्चा है चीज कि उसके बच्चे का नाम क्या है, तो आपने पीछे पढ़ा था सारा अनवर और रूबी है, यानी उसके बच्चे का नाम सारा अनवर और रूबी है। ऐसे 5वें नंबर में देखिए खाना, है ना, खाना खाना आहा चतुरस्त, उसका घर कैसा है, तो अभी आपने पीछे भी पढ़ा और पीछे के उसमें जुमले में भी पढ़ा था कि कुशंगा कशंगस्त यानी उसका घर क्या है, खूबसूरत है। तो देखिए सवाल कर रहे हैं, इसी तरीका से हमें जवाब देना है। छठे नंबर पे देखिए ई खाने चंद अताक दारद सह उताक बुजुर्ग दारद, है ना, यानी उनके 3 बड़े घर हैं, है ना, ई खाने चंद उताक दारद यानी कितने उसके घर हैं, तो कह रहे हैं कि उसके कमरे जो हैं, उसके कमरे 3 हैं। तो गोया कि ये बात आज की मुकम्मल आपको बात समझ में आ गई होगी, किस तरीके से सवाल करते हैं, हमें किस तरीके से जवाब देना है, आपको मुकम्मल जानकारी आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर अगले सबक के साथ हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।